السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس الحمد للہ. آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے تجوید انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، تو تجوید کی امپورٹنس ہم نے دیکھی، تجوید کی فضیلت دیکھی، اور تجوید کا علم کیوں ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہے یہ ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے، تجوید کا میننگ کیا ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، ٹائپس کون کون سے ہیں، حرف کے ہم نے سب کچھ دیکھا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے تجوید کا جو علم ہے وہ 4 امور پر موقف ہے. یعنی تجوید ایک بلڈنگ جیسا ہے جس کے 4 امپورٹنٹ پلرز ہیں. کیا ہے 4 امپورٹنٹ پلرز؟ تو سب سے پہلا امپورٹنٹ پلر یعنی تجوید اگر آپ کو آتی ہے، اور یہ چیزیں نہیں آتی، اس مطلب آپ کو تجوید ہی نہیں آتی، خوبصورتی سے قرآن پڑھنا آپ کو نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی تلاوت خوبصورت ہو، ایسی خوبصورت جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تھی، تو ویسی خوبصورتی لانے کے لیے آپ کی تلاوت کے اندر 4 چیزوں کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے مخارج الحروف. آپ کو ہر ایک لیٹرز کے نکلنے کی جگہ پتا ہو. ٹھیک ہے، مخارج مخرج کی جمع ہے، حروف یعنی لیٹرز کے نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے، مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، کون سا لیٹر کہاں سے ادا ہوتا ہے، کہاں سے نکالا جاتا ہے، یہ اس جگہ کا پتہ ہونا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کیا ہو تجوید کے ایکسپرٹ. آپ کو یہ آنا چاہیے، یہ آپ پہ کمپلسری ہے. ٹھیک ہے، دوسرا امپورٹنٹ پلر ہے احکام. احکام یعنی حکم، رولنگز، آرڈرز آپ کو آنے چاہیے. فار ایگزامپل اگر حرکت ہے لیٹرز پہ تو اس کا آرڈر کیا ہے کہ حرکت والے لیٹرز کو کیسے پڑھنا ہے. آپ کے سامنے چھوٹی سی ایگزامپل ہے، اس کو کہتے ہیں رولنگز. ٹھیک ہے، حرکت والے لیٹرز کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے، بالکل کھینچنا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رول اپلائی کیا ہم نے. سب سے پہلے ہم نے مخرج سیکھا، لیٹرز کو کہاں سے ادا کرتے ہیں، اور پھر لیٹر کی نکلنے کی جگہ جب آپ کو پتہ چل گئی، اس کے بعد لیٹرز کے اوپر نیچے جو سائن ہوتی ہے ان کو فالو کرنے کو کہتے ہیں احکام. کیا کہتے ہیں؟ احکام. احکام تجوید، تجوید کی رولنگز. ٹھیک ہے، تو یہ رولز کیا ہوتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں. بہت سارے رولز آپ سیکھیں گے انشاءاللہ، ان میں سے کچھ بیسک ہے، کچھ ایڈوانس ہوتے ہیں. تو بیسک میں آتا ہے حروف مدہ، حروف اللین، حروف مشددہ، حروف الساکینہ، حروف القلقلہ، اور نون ساکن تنوین کے قاعدے، میم ساکن قاعدے، نون قطنی، حمزۃ الوصل. بہت ساری چیزیں آپ سیکھو گے انشاءاللہ، لیکن یاد رکھیے یہ ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں، احکام. کیا کہتے ہیں یہ ساری چیزوں کو؟ احکام. آپ کو ہر ایک حکم آپ کو کیا آرڈر دے رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. حرکت کو آپ لیٹ پڑھ رہے ہو، کھینچ کے پڑھ رہے ہو. ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو اگر ان کو مخرج آتا بھی ہے، ان کو پتا بھی ہے لیٹرز کہاں سے نکالے جاتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ لیٹرز پہ کون سا آرڈر ابھی فالو ہوگا. حرکت کی کنڈیشن میں جلدی پڑھنا ہے، مدہ کی کنڈیشن میں 2 حرکت کھینچ کر پڑھنا ہے، اور جب بڑی مد آتی ہے تو پھر اس کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے. یہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں کہاں آتی ہے؟ احکام میں آتی ہے، جو کہ تجوید کا موسٹ امپورٹنٹ پلر ہے. اس کے علاوہ آپ کی خوبصورتی تلاوت میں نہیں آ سکتی. تھرڈ امپورٹنٹ پلر کون سا ہے آپ کا؟ تھرڈ امپورٹنٹ پلر ہے، اسے کہتے ہیں صفات الحروف. کیا کہتے ہیں اسے؟ صفات الحروف. حروف یعنی لیٹر. صفات صفت کی جمع ہے. صفت کسے کہتے ہیں؟ کوالٹیز. صفت کسے کہتے؟ بولیے. صفت کسے کہتے ہیں؟ کوالٹیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے آپ کے سامنے، میں آپ سے کہوں کہ آپ کے گھر کوئی ہاں کل کوئی آپ کے گھر آنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے صرف آپ کو ایک انفارمیشن دی. پھر اگر میں آپ سے کہوں کہ کل کوئی ایک ریلیجیس پرسن، ایک اسلامک پرسن آپ کے گھر آ رہا ہے، تو آپ کو اور زیادہ خبر ملی. ٹھیک ہے، یہ جس حساب سے آپ پریپریشن کروں گی، کیونکہ آپ کو پتا چلا کوئی دیندار آپ کے گھر آ رہا ہے. پھر اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ سعودی سے ہے، اور میں ان کی اور تعریف کروں، یعنی میں نے ان کی کوالٹیز آپ کے سامنے بیان کی. اب میں نے آپ کے سامنے ان کی کوالٹیز بیان کیوں کی؟ اس لیے کی تاکہ آپ کو ڈیل کرنے کیا ہو، آسانی ہو. ٹھیک ہے،
आप उनसे डील कैसे करोगे, पहले से आप प्रिपेयर होंगे मेंटली तौर पे कि हाँ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। आप उनके सामने वो हरकत नहीं करोगे जो उनको ना पसंद होगी, समझ में आ रहा है। तो अब लेटर्स के साथ भी ऐसे करना है, क्या करना है, लेटर्स क्वालिटीज रखते हैं, ठीक है। तो उनके साथ वो नहीं करना है जो वो क्वालिटी नहीं रखते, जो क्वालिटी वो रखते हैं आपने उनके साथ वैसे ही डील करना है। फॉर एग्जाम्पल लेटर्स सिफातुल हुरूफ में क्वालिटीज में आते, कुछ लेटर बहुत हैवी होते, कैसे होते, हैवी, मोटे पड़े जाते। अगर फॉर एग्जाम्पल तो एंड ता, ठीक है। अब दोनों की अपनी क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, जिस तरह तो की क्वालिटी है कि उसको आपने क्या पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, इसी तरह से ता की क्वालिटी के आपने उसको हल्का पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं कुरान में ता आ रहा है आप उसको तो बोल के पढ़ रहे हो और आपको 10 पॉइंट्स मिलने वाले, ऐसा नहीं, आपको रॉन्ग मिलेगा। मैंने कहा ना, या तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं या तो फिर आपको जीरो मिलता है, क्योंकि आपने लेटर को ही चेंज कर दिया। लेटर चेंज होने से क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। तो पता चला ता के अंदर क्या क्वालिटी है, लाइट क्वालिटी, हल्का पढ़ा जाता है। लेकिन तो क्या है, हैवी क्वालिटी रखते हैं, मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है। इसी तरह से लेटर सा एंड वो, ठीक है, वो तो के साथ जो होता है वो, ये भी मोटा पढ़ा जाता है। सोद, दोद, है ना, ये सारे लेटर्स जो है ये मोटे पढ़े जाते हैं, इनकी क्वालिटी है। यानी आप देखोगे कुरान में, पूरे कुरान को आपने पढ़ना है, और जब भी ये लेटर्स आएंगे तो आपने इनको किस तरह से अदा करना है, इनकी क्वालिटीज के साथ। अगर कोई लेटर हल्का है आपने हल्का ही अदा करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लेटर अलिफ है, ठीक है, आपके सामने लेटर अलिफ है, लेकिन आप अलिफ को भी निकाल रहे हो आइन के जैसा, मखरज से, आइन के मखरज से निकाल रहे हो, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपने अलिफ को उसकी क्वालिटी से नहीं निकाला बल्कि आइन की क्वालिटी उसको देगी हलक वाली। आप में से अक्सर लोग हैं जो बहुत अच्छी तजवीज निकालने की कोशिश करते और क्या करते हैं, जो आसान हल्के लेटर्स होते हैं उनको भी मोटा कर देते हैं, उनको लगता है कि हमने बहुत बेस्ट किया। तो ये गलत होता है, हर लेटर्स को उनकी अपनी सिफत के साथ निकालना होता है, हर लेटर्स को उनका अपना हक देना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अल्हम्दु, अल्हम्दु, लेकिन आपने पढ़ा अलहम्दु, अलहम्दु, तो आपने अलिफ को आइन कर दिया। आइन करने की वजह से ना आपको पॉइंट्स मिले बल्कि आपको गुनाह मिलेगा, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अलिफ की क्वालिटी है इसको लाइट पढ़ना, आइन की क्वालिटी है उसको हल्क से निकालना, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्वालिटीज किसे कहते हैं। अस्सिफातुल हुरूफ में हम पढ़ते हैं लेटर्स की क्वालिटीज। याद रखिए उससे पहले आपका मखारिजुल हुरूफ का आना और अहकाम तजवीद का आना बहुत जरूरी है। अगर आप कहोगे मुझे डायरेक्ट क्वालिटीज वाला लेवल पार करना है, डायरेक्ट आप थर्ड या फोर्थ स्टेप पे सीढ़ी पे पैर रखना चाहते हो, तो ये मुश्किल है। आपको कैसे चढ़ना होगा, पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो आपका थर्ड स्टेप क्या है, आपका सिफातुल हुरूफ, जिसमें आप हर लेटर्स की क्वालिटीज देखोगे। अब कुछ क्वालिटीज टेम्पररी होती है, कुछ क्वालिटीज परमानेंट होती है, ठीक है। तो परमानेंट क्वालिटीज कौन सी है, टेम्पररी क्वालिटीज कौन सी है, ये चीजें भी आपको सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये क्या है, तजवीद का इम्पोर्टेंट थर्ड पिलर है। यानी अगर आपको तजवीद आती है, सब कुछ आता है, लेकिन सिफातुल हुरूफ के बारे में कोई इल्म नहीं है, इसका मतलब आप खूबसूरती से कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पॉइंट्स क्या होने वाले, जाने वाले, अगर आपको नहीं आता सिफातुल हुरूफ। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर है जबान की मश्क व रियाजत, ठीक है। अब आप कहोगे कि मेरे पास ढेर सारा इल्म है, मैंने तजवीद इससे पहले भी सीखी है, लेकिन फिर भी मैं नहीं अप्लाई कर पा रही हूँ, फिर भी मुझे अप्लाई करने में तकलीफ हो रही है। तो क्या आपने क्या गलती की है, तजवीद का जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर था ना, आपने उसको मिस कर दिया। वो क्या है, एक्सरसाइज, क्या है वो, जबान की मश्क व रियाजत, यानी जबान का हिलाना, एक्सरसाइज करना, खुद से बोलना। आप एज के कोई भी हिस्से में हो, आपने बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल लाउडली बोलना है, तेज आवाज से बोलना है, तेज आवाज से प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप तजवीज सीख नहीं लेते। अगर तजवीज सीखने के दौरान आपने कॉन्सेंट्रेटली 100% क्या की है, प्रैक्टिस की है, तो याद रखिए आप हमेशा लाइफ टाइम के लिए, आपको हमेशा के लिए तजवीज आपके लिए जहन में हिफ्ज हो जाएगी, आप कभी भी उसको नहीं भूलोगे, कभी नहीं। तब जब आपने फोर्थ पिलर पे इंपॉर्टेंट ध्यान दिया है, प्रैक्टिस की है। हम में से अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर पढ़ा रही सिर्फ सुन रहे, कभी उसको अप्लाई नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी सुन रहे, और उनको ऐसा लगता है शायद मैं क्लास सुन लूँ तो मुझे सब आ जाएगा। तो याद रखिए आप बहुत सारा इल्म भी आपके पास है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, खुद से मुंह नहीं खोलते, तो फिर आपके मसल्स वर्क में नहीं आते, ठीक है। आपके मसल्स का वर्क में आना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आइन को हलक से निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अस्सलामु अलैकुम बोलने टाइम पे भी आइन का मखरज आएगा। यानी नॉर्मल से नॉर्मल छोटी सी जिक्र हो या छोटी सी बात ही क्यों ना हो, आप उस पे भी मखरज को अप्लाई करो। क्यों, क्योंकि वो आपकी हैबिट हो गई है। आप
इतनी अच्छी प्रैक्टिस की कि अभी कभी भी आइन आएगा आपकी लाइफ में निकालने के लिए तो आप उसको इतना प्रॉपर निकालोगे, फिर वो चाहे नॉर्मल बातचीत में ही क्यों ना हो, इतना अच्छा आपका मखरज हो गया क्योंकि आपने प्रैक्टिस वैसी की। तो आपने हमेशा कुरान को तजवीद से पढ़ा है क्योंकि आपका इंटेंशन ये है ना कि मैं कुरान भी पढूं और मुझे हर एक लेटर पे पॉइंट्स भी मिले। जब आपका इंटेंशन ऐसा है तो फिर आप किसी तरह से भी गलती नहीं करोगे, और गलती ना हो और कुरान ठीक से पढ़ने के लिए आपके पास इल्म होना चाहिए तजवीद का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी प्रैक्टिस हो तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस के दौरान आपने अपनी 100% कोशिश करनी है, ठीक है। 100% निकलने की कोशिश, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपका आइन निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर डेली आप निकालने के लिए कोशिश करोगे तो क्या होगा, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए आसानी से आपका मखरज निकलेगा, ठीक है, और आप एक्सपर्ट बन सकते हो इंशाल्लाह। तो जो हलक के लेटर्स है उन्हें हलक से निकालना, इससे क्या होता है आपके मसल्स वर्क में आते हैं, ठीक है, आपका हलक खुल जाएगा और हमेशा के लिए आपके आइन लेटर हलक से ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस की है। अब आपके मुंह के जो मसल्स है उसको कोई और तो नहीं खोल सकता, खोल सकता है कोई और, आपको प्रैक्टिस करवा सकता है कोई, जबरदस्ती नहीं करवा सकता। ये तो आपके अंदर खुद इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर आप इतनी प्रैक्टिस करते हो कि आपका कलकला का लेटर्स, गुन्ना, बराबर नाक में आपके गुन्ना, नाक में से गुन्ना की वॉइस ही निकलती है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को नाक से निकालते हैं, तो फिर ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे लेटर्स की प्रैक्टिस नहीं की, या एक ही चीज को सब पे अप्लाई करने की कोशिश की, एक ही सिफत को सारे लेटर्स पे लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। हर लेटर का अपना अपना हक होता है, इसको उसकी हक से अदा करना है। इसीलिए हमने पढ़ा था ना कल कि तजवीद का इस्तिलाही मीनिंग क्या है, हर हर्फ को उसके सही मखरज से अदा करना और उस हर्फ को उसकी सिफत के साथ उसका हक देना, ठीक है। ये खूबसूरती होती है। अब हम में से अक्सर हमें बड़े सगीर के जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, उनको लगता है जितनी ट्यून में अगर कोई पढ़ रहा है ट्यून लगाकर, और यहाँ तक कि कई लोग तो सॉन्ग की ट्यून में भी पढ़ते हैं। और आप देखोगे कि जब आप तजवीज सीखोगे तो आपको समझ भी आएगी कि कई लोग तो अजान भी गलत देते हैं, ठीक है। तो वो तो अल्लाह उनसे उनकी इस्तिताअत के मुताबिक पूछेगा। लेकिन ये चीज को आप पकड़ कब पाओगे, जब आप खुद 100% श्योरिटी वाला इल्म हासिल करोगे, उस पर अमल करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जब अरब कंट्रीज में आप देखोगे इंडिया की जब अजान लगाई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आती है तजवीद, वेरी नाइस। लेकिन बहुत ही ज्यादा लोग हैं जो मिस्टेक्स करते हैं अजान में भी, नॉर्मली अल्लाह अकबर बोले आप बोलते हैं, या फिर हाँ का गलत मखरज निकालते, या बहुत सारी मिस्टेक वो करते हैं सिर्फ अजान देने में ही, ठीक है, जो आप आसानी से पकड़ सकते हो। कब? जब आपको ये चारों चीजें आसानी से आती हो और ये बेसिक है, ये आपका बेसिक है। यानी फॉर एग्जांपल नमाज पढ़ रहे हो आप, नमाज में आपकी तकबीरात है, तस्बीहात है, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। इतनी तजवीद तो हर एक को आना क्या है, फर्ज है कि आपकी नमाज के अस्कार, जिक्र अस्कार, ठीक है, वुदू की दुआएं, और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, इस सारी चीजों में आपके नॉर्मल चीजें बराबर होनी चाहिए। लेटर्स की चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। लेटर्स चेंज कब होते हैं, जब आपको मखारिजुल हुरूफ नहीं आते, निकलने की जगह नहीं पता होती है, या फिर सिफातुल हुरूफ नहीं आता है, या फिर अहकाम तजवीद नहीं आती है, लेटर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब लेटर चेंज होने से क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, आपको उसका गुनाह मिलता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अल्हम्दु, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अल्हम्दु, तमाम दुआ अल्लाह के लिए, ठीक है। आप दुआ कर रहे हो कि आप बदुआ कर रहे हो, आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, ये आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना इल्म जो फर्ज है आप पे वो हासिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको आना चाहिए, सारे लेटर्स जो हमारे 28 हुरूफ तहज्जी के वो कहाँ से निकाले जाते हैं, पहले जगह पता होनी चाहिए। तो इस पीडीएफ में हम इस कोर्स हम बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं तजवीद के जहाँ पर आपको दांतों के नाम याद करने होते हैं, जो बहुत मुश्किल गुजरते हैं, बहुत टाइम तक आपको याद आएगा नहीं कौन से दांत का क्या नाम है, कौन से पार्ट का अरबिक में क्या नाम है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हम आपको बहुत इजी तरीके से सिखाएंगे, इतने इजी तरीके से कि आपके साथ अगर आपका बच्चा भी बैठा है तो वो भी आसानी से समझ जाता है। देखिए फर्स्ट चैप्टर जो आपका है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर, मखारिजुल हुरूफ, ठीक है, मखारिजुल हुरूफ, मखारिज मखरज की प्लूरल है, हुरूफ हर्फ का प्लूरल है, ठीक है। देखिए मखरज प्लूरल है, मखारिज, अल हर्फ, ठीक है, अल हर्फ सिंगुलर है, वन लेटर, लेटर्स के लिए हम बोलेंगे अल हुरूफ, यानी हुरूफ और उनकी निकलने की जगह, अलिफ से लेके या तक के जितने भी लेटर्स है वो और उनकी जगह है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग जगह है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम फर्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, और ये बहुत थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपकी तिलावत पे इससे पड़ता है। यानी आप कभी तिलावत में गलती नहीं करोगे लेटर्स के निकालने पे,
और छोटी से छोटी भी बारीकी आपको समझ में आएंगी कि लेटर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल वैल, स, वो, बोध, सिमिलर सिमिलर साउंड वाले लेटर्स जो है इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो एक तो डिफरेंस इनके मखरज का होता है, दूसरे इनकी सिफत का होता है, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे, जिसकी वजह से कुरान में जब भी आप ये लेटर्स आपके सामने आएंगे ना, तो फौरन आपके दिमाग में मखरज आएगा कि मुझे निकालना इसको इस जगह से, जिसकी वजह से ये प्रॉपर निकलेगा, ठीक है। प्रॉपर ये पढ़ा जाएगा, जिसकी वजह से आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, पेज नंबर 9 आपके सामने है मखारिज। अब मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मखारिज क्या है, प्लूरल है मखरज की। मखारिज का सिंगुलर है मखरज, प्लूरल है मखारिज। बहुत सारी निकलने की जगह है, ठीक है। तो एक लेटर बहुत सारी जगह से तो नहीं निकलेगा, एक लेटर तो एक ही जगह से निकलेगा, है ना। बहुत सारे लेटर्स के अलग अलग निकलने की जगह है, इसलिए से कहते हैं मखारिज, यानी खारिज होने या निकलने की जगह। मखरज या मखारिज का मतलब होता है खारिज होने या निकलने की जगह। अगर आप अरबिक लैंग्वेज जानते हो तो आपको पता होगा खौराजा, खौराजा का मतलब होता है निकलना, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है अल मखरज, ठीक है। मखरज वो मुकाम है, एक तो रूट मीनिंग हो गया निकलना, निकलने की जगह, खारिज होने की जगह। कुरान अहादीस में मखरज से रिलेटेड क्या लिया गया है, कुरान से रिलेटेड, कुरान में इसका मीनिंग लिया गया है मखरज वो मकाम है जहां से किसी खास हर्फ की खास आवाज निकाली जाए ताकि उस हर्फ को दूसरे हरूफ से अलग किया जा सके, ठीक है। समझ में आया? मखरज वो मुकाम है, कुरान और अहादीस में जब भी आपको कोई कहा जाएगा स्टडी कर रहे हो आप इस्लामिक, और आपको कोई कहे मखरज, मखरज से पढ़िए, मखरज से निकालिए, तो उसका मतलब क्या होता है, हर हर्फ को उसके सही मकाम से निकालिए, ठीक है, ताकि उस हर्फ में और दूसरे हर्फ में डिफरेंस किया जा सके। उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो पता लगाना है, तो आपको अपने लेटर्स को मखरज से निकालना है। अलिफ को उसके मखरज से निकालना है, आइन को उसके मखरज से निकालना है। जब दोनों को अपने मखरज से निकालोगे तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि अलिफ से तो नॉर्मल निकाली जाती है और आइन तो हलक से निकाली जाती है, क्योंकि आपको हलक क्या है, आइन का मखरज है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। आइन का मखरज क्या है, निकलने की जगह क्या है, हल हलक। जब अल हलक से आइन को आप निकालोगे तो पता चला कि जहां से आइन नहीं निकलती है वहां से अलिफ निकलती है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी होगी, और एग्जाम्स, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्स होते हैं, ओरल्स होते हैं, रिटन एग्जाम्स होते हैं, और फिर सर्टिफिकेट गिफ्ट सारी चीजें होती है, और आपको उस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे बिल्कुल नहीं कि आपने कोर्स किया आपको कुछ नहीं आया। 100% तो हर स्टूडेंट्स को आता है। बहुत ही ज्यादा कमजोर स्टूडेंट्स है तो वो 90% तक तो सीख ही जाते हैं alhamdulillah। जो ज्यादा एजेड होते हैं या फिर सबसे इजीली और जल्दी बच्चे सीखते हैं, ठीक है। जितनी छोटी एज के बच्चे रहेंगे वो आपसे उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट और आगे होंगे, क्योंकि उनके जो मसल्स है ना वो वर्क में होते हैं। आप उनको आइन बोलो, उनका आइन फौरन निकल आएगा। आप उनको हुरूफुल हल्किया का हा बोलो, खौ बोलो, गईन बोलो, सारे लेटर्स उनके निकल आएंगे, क्योंकि उनके मसल्स अभी वर्क में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बहुत ओल्ड हो जाते हैं, अभी उनके मसल्स ना बैठ गए होते हैं, तो मसल्स को वर्क में लाने की जो तकलीफ है उनको खुद उठानी होती है। उसके अलावा बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स और जिस तरह से पढ़ना है सारी चीजें उनको समझ में आती है। और फिर जो मशक्कत वो उठाएंगे उस पर अल्लाह ताला उनको दुगना अजर देगा, ठीक है। तो अजर के लिए तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, अगर अजर ही आपको दुगना मिल रहा है तो फिर बहुत बड़ी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मखरज मतलब हर लेटर्स को उनके सही मकाम से निकालना, ताकि खास आवाज के साथ निकालना, ताकि एक लेटर और दूसरे लेटर्स के दरमियान फर्क किया जा सके। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक है। अब ये जो मखरज है ये चीज अप्लाई कहाँ होती है, अल हर्फ। मखरज को किस पे अप्लाई किया जाता है, हर्फ पे। अलिफ क्या है, हर्फ। बा क्या है, हर्फ। ता क्या है, हर्फ। अब हर्फ को निकाला कहाँ से जाता है, मखरज से। इतना समझ में आया? हर्फ के निकलने की जगह को क्या कहते हैं, मखरज। लेटर्स के निकलने की जगह को क्या कहते हैं, मखरज, ठीक है। अब हर्फ, हर्फ उस आवाज का नाम है जो एक मुअय्यन या गैर मुअय्यन मखरज पर इन्हिसार डिपेंड करती है। अगर एक लेटर है, मैं आपके सामने एक लेटर लिखूं, तो आपको एक लेटर को पढ़ने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, एक लेटर को पढ़ने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, बताएंगे आप लोग? क्या होना जरूरी है, आवाज। मखरज को निकालना है, मखरज से लेटर्स को निकालने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, आवाज, ठीक है। अगर आपके सबके पास आवाज है, अल्हम्दुलिल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ना।
अगर आपके पास आवाज नहीं हो तो आप किसी को अपनी बात समझा सकते हो, मकसद निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। जब आप तजवीज़ सीखते हैं तो आपको अल्लाह की बहुत सारी नेमतें पता चलती है कि अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे-अच्छे पार्ट्स दिया, कि क्या-क्या बारीकियाँ हैं और क्या-क्या इसके अंदर ब्यूटीज़ है, एक इंसान उसका सही इस्तेमाल कर सकता है। और ये सारे अज़ा का सही हक तो ये होगा कि हम उसको अल्लाह ने जिस मकसद से बनाया हम उसके पीछे लगाए, ठीक है? तो कुरान पढ़ना भी इबादत है और अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है। तो हर बंदा ये काम नहीं कर रहा अपने अज़ा से, अपने बॉडी पार्ट से, लेकिन अल्लाह जिसे चूज़ कर ले, ठीक है? अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला फिर उसके अज़ा से भी सही काम लेता है। फिर आपके अज़ा हर एक पार्ट क़यामत के दिन क्या करेंगे? गवाही देंगे, है ना? आपका हलक गवाही देगा, आप आपके होंठ गवाही देंगे, आपकी आँखें, आपके कान, आपकी ज़ुबान, हर चीज़ आपके खिलाफ या आपके हक में गवाही देगी। अगर सही इस्तेमाल किया तो आपके हक में गवाही देंगे और गलत इस्तेमाल किया आपके खिलाफ गवाही देंगे। तो इस बात पे आपका बिलीव है तो फिर आपको खुश हो जाना चाहिए कि अल्लाह ने आपको पार्ट्स भी दिए, आपने अपनी बॉडी पार्ट्स का सही जगह पे इस्तेमाल किया, उसका मिसयूज़ नहीं किया, ठीक है? तो आपको समझ में आया? अगर आपको एक हर्फ को ठीक से पढ़ना है, मखरज से निकालना है, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आवाज़ की, ठीक है? तो हर्फ को निकालने के लिए आपको आवाज़ की ज़रूरत होती है। अब मुअय्यन या गैर मुअय्यन यानी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, यानी आप उसको इंटेंशनली निकाल रहे हो, एक होता है कि मैं इंटेंशनली आइन को हलक से निकाल रही हूँ, और एक होता है मैंने नॉर्मली निकाल दिया, बस मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने निकाल दिया, ठीक है? तो आवाज़ कभी-कभी क्या होती है, हम सोच समझ कर निकालते हैं, कभी-कभी हम बस यूँ ही निकाल देते हैं। तो आपका हर्फ तो निकल ही जाएगा, जैसे आपकी आवाज़ निकलेगी वैसे आपके हर्फ भी निकल जाएँगे, ठीक है? तो हर्फ को निकालने के लिए आवाज़ की ज़रूरत होती है, फिर चाहे आपने आवाज़ को सोच समझ के निकाला हो या यूँ ही निकाल दिया हो। ये समझ में आ गया? हर्फ को निकालने के लिए आवाज़ की ज़रूरत है। अब आपके पास है मखरज, फिर हम मखरज की तरफ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी हमको पता चल गया कि हर्फ को निकालना है आवाज़ से और उसके लिए हमें मखरज का पता होना ज़रूरी है। आवाज़ को निकालना कहाँ से? एक तो है हमको हर्फ को अदा करना है, ठीक है? अलिफ, बा, ता हमको लेटर्स को अदा करना है। उसके अदा करने के लिए हमें इसके मखरज का पता होना चाहिए कि अलिफ कहाँ से आता है, बा कहाँ से आता है, और अगर आपके पास आवाज़ है तो आप फ़ौरन मखरज से लेटर्स को निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर? गुड। अब आपको बताया जा रहा है कि मखरज जो है उसके 2 टाइप्स हैं। मखरज जो है उसके भी 2 टाइप्स हैं। एक है मुअय्यन मखरज, एक है गैर मुअय्यन मखरज। मुअय्यन मखरज और गैर मुअय्यन मखरज अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अभी तक के आपको नहीं आता था मखरज, इसका मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ रहे थे, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, है ना? आपने इंटेंशन नहीं दिया कभी ठीक से निकालने के पीछे। कुछ लेटर्स आपको पता थे, तो आपने उसको निकाला, कुछ को नहीं पता था, इल्म नहीं था मखरज का, तो अपनी मर्जी से निकाला, ठीक है? तो देखिए, मुअय्यन मखरज वो मखरज है जिसका इन्हिसार किसी खास जगह यानी हलक, ज़ुबान या दोनों होठों से होता है। अगर मैं आपसे कहूँ हलक से लेटर को निकालिए, यानी ये पर्टिकुलर मखरज है, आइन का मखरज जो है वो मुअय्यन मखरज है। क्यों? क्योंकि आइन कहाँ से अदा होता है? अल हलक, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ ज़बान के कोई लेटर्स है, ज़बान भी क्या है? मुअय्यन मखरज में आती है, यानी ऐसा मखरज जिसका जो बॉडी पार्ट है आपको पता है, ठीक है? बॉडी पार्ट्स, आपका जो 5 इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स आपके इसमें लगने वाले हैं, ठीक है? मखरज में। तो अगर आपके होंठ, ठीक है? आपके दोनों होंठ, आपकी नोज़, आपका हलक और आपकी ज़ुबान, ये जो है अगर यहाँ से आपके मखरज निकल रहे तो ये हुए मुअय्यन मखरज। लेकिन ऐसा मखरज जो इन इन इनमें से नहीं निकल रहा, आप उसका पार्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अलिफ, ठीक है? आपको पता है अलिफ हवा से निकलता है। अलिफ मुँह के अंदर मौजूद जो गैप है ना, खाली गैप हवा वहाँ से निकलता है। अगर कोई मुझसे पूछे अलिफ का मखरज क्या है? तो मैं उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ज़ुबान है, होंठ है, हलक है, मैं ये बता नहीं सकती। इसलिए मैं उसको उसको कौन से कैटेगरी में हम डालेंगे? गैर मुअय्यन मखरज। कौन से कैटेगरी में डालेंगे आप? गैर गैर मुअय्यन वो मखरज है जिसका इन्हिसार किसी खास जगह यानी हलक या ज़ुबान या दोनों होठों से ना हो। ये आसानी से आपको पता नहीं लगेगा कहाँ से निकल आ रहे हैं, बस निकल आ रहे हैं, ठीक है? तो फिर आपको उसको गैर मुअय्यन लेटर्स कुछ होते हैं जो मुअय्यन मखरज के होते हैं, जो आसानी से आप पता लगा सकते हो, लेकिन कुछ होते हैं जो गैर मुअय्यन होते हैं, जिसको आपको बस निकालना है। उसकी जगह आपको बताई जाएगी, लेकिन वो जगह को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यानी मुँह में मौजूद खाली हवा से निकाला जाता है अलिफ। अभी खाली हवा को अब कोई मखरज है, कोई प्लेस में नहीं है ना, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया? मखरज के 2 टाइप्स।
एक है जो फिक्स्ड है, आप बता सकते हो अल हलक, अल लिसान, अशफतान, अल खैशूम। ठीक है, तो 5 इंपॉर्टेंट मखरज होते हैं आपके, जो आसानी से आप पता लगा सकते हैं। और जो नहीं पता लगा सकते वो है गैर मुअय्यन मखरज। अब आपके जो हुरूफ तहज्जी है टोटल कितने हैं? 28। ठीक है, 28 जो हुरूफ तहज्जी या तो मुअय्यन मखरज में से होंगे या तो गैर मुअय्यन में से होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह समझ में आ रहा है आप सबको? कैसा लग रहा है आपको पढ़कर? आपको समझ में आ रहा है? ये फिलहाल ये तजवीद का इंट्रोडक्शन है, और इंशाल्लाह कल भी हमारी इंट्रोडक्शन की ही क्लास होगी। मखरज अलिफ का जो हम स्टार्ट करते हैं तो आप देखोगे कि मखारिजुल हुरूफ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, वो पूरा 1 मंथ चलता है। ठीक है, आपके वैसे 4 डेज की क्लास है, मंडे टू थर्सडे। ठीक है, तो 4 डेज में आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, मखरज भी बताया जाता है, प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। जब आपके अलिफ से लेके या तक के सारे लेटर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम कायदे में जाते हैं। कायदे का फर्स्ट पेज जो होता है ना, अब कायदे का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें अलिफ से लेके या तक के हुरूफ लिखे होते हैं, हुरूफ तहज्जी। तो बस हमने उसको पढ़ना नहीं है। जब हम मखारिजुल हुरूफ चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर हम उस अलिफ से लेके या तक के लेटर्स को उनके सही मखरज से निकालना सीखें। एक बच्चों को हम किस तरह से पढ़ाते हैं, अलिफ, ब, त, सा, हम उनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि भाई अलिफ से लेके या तक के मखरज हम आपको सिखाएंगे, फिर आपको कायदे में से आपकी प्रैक्टिस सुनेंगे, आपको पढ़ने को बोलेंगे, आपको फील करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी कायदे में से। ठीक है, तो हम सिर्फ कायदे का इस्तेमाल प्रैक्टिस के लिए करते हैं, बाकी पीडीएफ में से आप अपना इल्म हासिल करने वाले जो आपके सामने है। ठीक है, तो कोशिश करो कि अभी आपका नेक्स्ट मंडे से आपकी इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिस वाली क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आप खुद भी इसमें एडमिशन लो, अपने अपनों को भी इसमें ऐड करवाओ। ठीक है, तो ये आपके लिए सदका जारिया होगा, क्योंकि आपके जरिए कोई भी कुरान को ब्यूटीफुल तरीके से पढ़ेगा तो ये आपको बहुत ज्यादा सवाब पहुंचेगा। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आज के लिए हम पेज नंबर 9 तक ही रखते हैं। आप लोगों को किसी को कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं। कुछ पूछना है आप लोगों को? सब क्लियर है? ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, दुआ कर लीजिए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन।